کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، راہ دی پر قربان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میرے سامان ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس دور پہ تھی نازا دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ تھی نازا دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم بات بیان کرنے والا ہوں، ایک ایسی بات، ایک ایسا واضح کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بہت اہم مسئلہ ہوگا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بھیجے، وہ بھی ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے کے لیے ہر پیغمبر کو ان کو گھروں سے نکالا جائے، ہر پیغمبر کو اس مسئلے کے لیے ان کو گالیاں دی جائے، اس مسئلے کے لیے ہر پیغمبر کو برا کہا جائے، ہر پیغمبر کو اس مسئلے کے لیے ان کو منہ پہ پتھر مارا جائے، ان کو گالیاں دی جائے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن وہ گھر سے نکل کے اور تکلیفیں جھیل کے لیکن اس مسئلے کو نہ چھوڑے، طرح طرح کی عزتیں برداشت کرتے ہیں لیکن وہ اس مسئلے کو نہ چھوڑے، ان کو گھروں سے نکال دیا جائے لیکن اس مسئلے کو نہ چھوڑے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری خدائی میں سے اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے توحید کا۔ جی ہاں، آج میں آپ حضرات اسی موضوع پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ توحید کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہے، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں وہ روح کی، وہ توحید کی وہ روح نہیں ہے جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا ہے، جس کا تقاضا انبیاء نے کیا ہے، جس کا تقاضا نبیوں نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا وقت آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹیوں کی چال سے زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شرک شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو داتا سمجھا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو بگڑی بنانے والا سمجھا جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ غلط ہے،
शिर्क कहते किसको है कि जिस चीज का तकाजा अल्लाह तबारक ताला से करनी चाहिए, जो उम्मीद अल्लाह तबारक ताला से करनी चाहिए, जो उम्मीद और जो चीज अल्लाह तबारक ताला ही दे सकते हैं, अगर वो तकाजा अगर हम किसी बंदे से करें तो ये शिर्क है, किसी नबी से करें तो ये शिर्क है, किसी सहाबा से करें तो ये शिर्क है, किसी वली से करें तो ये शिर्क है, किसी पीर से करें तो ये शिर्क है, किसी पहाड़ों से करें तो ये शिर्क है, किसी दरियाओं से करें तो ये शिर्क है, किसी दरख्तों से करें तो ये शिर्क है, किसी आसमान से करें तो ये शिर्क है, किसी चांद सूरज से करें तो ये शिर्क है। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी कायनात के बंदे से करते हैं तो उसका नाम शिर्क है। और इसी शिर्क की जड़ों को काटने के लिए इस दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया तशरीफ लेके आए। मेरे अजीज दोस्तों, सारे अंबिया कलिमा दुनिया के सामने रखा, अंबियाओं का नाम बदलता रहा, पैगंबरों का नाम बदलता रहा, लेकिन दावत एक रही, मिशन एक रहा, नस्बुल आइन एक रहा, पैगाम एक रहा। वो दावत क्या थी, वो पैगाम क्या था, वो नस्बुल आइन क्या था? ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी के जमाने में नमाज का तरीका बदलता रहा, हज का तरीका बदलता रहा, ज़कात का तरीका बदलता रहा, रोजे की कैफियत बदलती रही, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी एक था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक था। देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल जबीउल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कहता है कि आप लोगों ने गौर किया कि अल्लाह कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, लेकिन आदम सफीउल्लाह पे नुक्ता, नूह नजीउल्लाह पे नुक्ता, इब्राहिम खलीलुल्लाह पे नुक्ता, इस्माइल जबीउल्लाह पे नुक्ता, मूसा कलीमुल्लाह पे नुक्ता, ईसा रूहुल्लाह पे नुक्ता। लेकिन जब बात आई मेरे आका की, अल्लाह कहता है कि जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह बेनुक्ता है। तौहीद तो पहले से मुकम्मल थी, नबूवत भी आज मुकम्मल हो गई है। आज लोग क्या करते हैं कि 2-3 चिल्ले लगा लेते हैं, अपने आप को नबी ही घोषित कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम खुराफात, बिदात, रस्म रिवाजों में उलझे हुए हैं। जरा सी आजमाइश होती है हम फौरन दर को बदल लेते हैं, जरा सी आजमाइश होती है हम अल्लाह के दरबार को छोड़ देते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं और चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, मज़ारों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, हजरत हमारे घर में बहुत तंगी है, तावीज बना दीजिए, हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही, तावीज बना दीजिए, हमारे घर में बहुत परेशानियां हैं, यहाँ तक कि हमारी बीवी हमारी मानती नहीं है, हमारी सुनती नहीं है, उसके लिए कोई तावीज बना दो। अल्लाह अल्लाह। आज तावीजों के भरोसे हम जी रहे हैं। हमारा अकीदा कहाँ पहुंच गया कि हम अपनी बीवियों को हम तावीजों से बनाएं। मेरे जी दोस्तों, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कि एक सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं अपनी बीवी की शिकायत लेके, अपनी बीवी की शिकायत लेके उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं और क्या कहते हैं, वो फौरन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और फिर इसके बाद दरवाजा खड़बड़ाते हैं। ये क्या कहते हैं कि अभी उमर आएंगे, अभी कमरे से बाहर आएंगे, दरवाजे पे आएंगे तो अभी मैं उनको अपनी बीवी की शिकायत बताऊंगा कि मेरी बीवी सुनती नहीं है, मेरे पे चिल्लाती है, चीखती है। मेरे अजीज दोस्तों, दरवाजा खड़खड़ाते हैं लेकिन ना ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना ही उमर वो बाहर आते हैं और ना ही उनकी आवाज बाहर आती है। वो सहाबी बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद फिर दरवाजा खड़खड़ाते हैं, लेकिन दूसरी मर्तबा भी ना ही उमर बाहर आते हैं और ना ही उनकी आवाज कोई बाहर आते हैं।
फिर इसके बाद तीसरी मर्तबा खड़खड़ाने के बाद वो क्या देखते हैं कि क्यों ना हम कुछ देखें, कोई बात तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो फौरन दरवाजे की तरफ झांकने लगते हैं, कान लगाने लगते हैं। क्या कान लगाते हैं, जैसे ही ये देखते हैं उनकी आंखें, वो सहाबी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो क्या देखते हैं कि उमर की बीवी उमर के ऊपर भड़क रही है। अल्लाह अल्लाह, उमर की बीवी उमर के ऊपर भड़क रही है। मेरे अजीज दोस्तों, वह उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, आज वो अपनी बीवी की सुनता है। अरे जरा देखो कि मेरे अजीज दोस्तों, ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं और फिर इसके बाद एक शराबी उनके सामने से आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, वो शराबी जैसे ही उमर को देखते हैं, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ये तो सामने से उमर आ रहे हैं। वो फौरन डर जाता है, सहम जाता है और फिर इसके बाद शराब की बोतल पीछे छुपा लेता है। उमर आते हैं और शराबी से सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो साहबी जवाब देता है। आज लोग क्या कहते हैं, आज लोग सलाम पे घमंड करते हैं कि उन्होंने सलाम नहीं किया है। अरे देखिए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक शराबी से सलाम कर रहे हैं और वो सलाम करते हैं और फिर इसके बाद वो शराबी अल्लाह से दुआएं करने लगता है, क्या है मेरे मौला, अब मेरा क्या होगा, है मेरे मौला, अब मेरा क्या होगा। जरा देखो, उमर में मेरा बिल्कुल पड़ोस में है और मेरे हाथ में शराब की बोतल है, आए मेरे मौला मुझे आज बचा ले। ए मेरे मौला, आज के बाद कभी भी मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मेरे सिंह दोस्तों, वो उमर कहते हैं कि हाथ में क्या है। उमर कहते हैं हाथ में क्या है, कहा कुछ भी नहीं है। कहा कि दिखाओ तो। जबरदस्ती वो उनका हाथ देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि वो जो शराब की जो बोतल थी वो दूध में तब्दील हो गई, वो दूध में तब्दील हो गई। अब वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान, हैरान कि क्या हुआ, रे मेरे हाथ में तो शराब की बोतल थी और फिर इसके बाद ये दूध कैसे बन गया। तो मेरे ऐसी दोस्तों, गैब से आवाज आती है कि ए बंदे, तू अगर उमर के गुस्से का डर रखता है तो हम भी यहाँ गुस्से का, उमर के गुस्से का एहतमाम करते हैं। वो आज अपनी बीवी की सुनता है। वो क्या देखते हैं साहबी कि उमर की बीवी उमर के ऊपर भड़क रही है कि तुम्हें जरा भी खबर नहीं है, तुम्हें जरा भी ये खबर नहीं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चे आज गल्ला नहीं आया है, अनाज नहीं आया है। तुम्हें दूसरों की तो पड़ी है लेकिन तुम्हें अपने घर की नहीं पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, वो साहबी देखता है कि अरे उमर की बीवी उमर के ऊपर भड़क रही है। वो कहते हैं, अरे वो चल देता है, वो वहां से चल देता है। कहता अब मेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वो फौरन वहां से चल देता है और फिर इसके बाद उमर दरवाजे पे आ जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो शख्स आया था, जो दरवाजे खड़खड़ा रहा था, जो आवाजों के ऊपर आवाजें दे रहा था, वो तो शख्स जा रहा है। तो आवाज देते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हुआ, जा रहे हो। उमर ने कहा अरे क्या हुआ, आए थे, जा रहे हो। कहा नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। क्या तुम्हारा काम हो गया, ये क्या बात रही। दरवाजा खड़खड़ाया और फिर इसके बाद आवाजें दी, इतनी देर तक तुमने इंतजार किया और बिना बात बताए तुम्हारा काम भी हो गया। कैसा काम था, क्या काम था, जब बिना बताए तुम्हारा काम हो गया। अरे जरा यहाँ तो आओ। कहा नहीं नहीं, मेरा काम हो गया। कहा यहाँ। अब जरा देखो, बीवी का गुस्सा उस सहाबी के ऊपर निकाल ले, बीवी का गुस्सा उस सहाबी के ऊपर निकाल लें। मेरे ऐसे दोस्तों, वो आता है, वो शख्स आते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं, उमर कहते हैं क्या बात थी, तुम बिना बताए जा रहे थे। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या बात है। कहा कि उम्मुल मुमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत आपके पास लेके आया था कि मेरी बीवी सुनती नहीं है, मेरी बीवी सुनती नहीं है, मेरी बीवी जरा भी मेरा बातों का ख्याल नहीं रखती है, बल्कि वो उल्टा सीधा जवाब देता रहती है। तो उमर कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में काम कौन करता है, तुम्हारे घर में काम कौन करता है। कहा मेरी बीवी का खाना कौन बनाता है, मेरी बीवी। तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखता है। कहा मेरी बीवी। कहा कि आपके बच्चों का देखभाल कौन करता है। कहा मेरी बीवी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारा बच्चा है उसको दूध कौन पिलाता है। कहा उम्मुल मुमिनीन, यह कैसा सवाल है। कहा बताओ, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। कहा मेरी बीवी दूध पिलाती है।
تو میرے اسی دوستوں کہا کہ یہ ساری ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے. اگر وہ منع کر دے کہ وہ کھانا نہیں بنائے گی تو وہ کھانا تم زبردستی نہیں کر سکتے ہو. یہاں تک کہ اگر بیوی منع کر دے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو میرے عزیز دوستو آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے ہو. اگر وہ کرایہ مانگتی ہے تو تم اس کو کرایہ دے سکتے ہیں, کرایہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستو آپ لوگ جو تعویذوں کے سہارے رہتے ہیں, میرے عزیز دوستو آپ لوگ اپنی زندگی سے یہ بدعات, خرافات, رسم و رواجوں کو میرے عزیز دوستو باہر نکالو اور میرے عزیز دوستو شریعت کو اپناؤ. شریعت ہی بولتی ہے. میرے عزیز دوستو میں جاتے جاتے دوبارہ وہی اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ جس دور پہ تھی نازا دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ تھی نازا دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وما توفیق الا باللہ.